Good morning, students. We are doing chapter number 4 of class 10th mathematics. Check. And we came on the exercise 4.3. And we have completed the topic method of completing square. Now turn for quadratic formula. Okay. What is the quadratic formula and how it helps to find the solution of a given quadratic equation? This is our topic for today. Okay. We will solve the question now. This is exercise number 4.3. ये जो एक्सरसाइज है वो कौन सी हमारी 4.3 और जो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम कौन सा कर रहे हैं आज सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं. कौन सा कर रहे हैं सेकंड. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. If a quadratic equation is, we know that the general quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. You know very well about that. Then quadratic formula. What is the meaning of the quadratic formula? Meaning is that x is here. It means we get value of the x is equal to minus sign of b. Here you can find the value of the b. Minus sign of b plus minus under root b square minus my 4ac divide by 2a where b square minus my 4ac ये जो इसके अंडर में लिखा है अंडर रूट के अंदर लिखा है b square minus my 4ac is equal to d. इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? d बोले तो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. क्या नाम है इसका? डिस्क्रिमिनेंट. अब इससे हम कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बेस पर मैं क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सामने. ओके, मैं यहां तक इसको लिखा रहने दे रहा हूं कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये होता है. ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करने वाले हैं, उसमें क्या बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितनी इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज 2x square plus x minus 4 is equal to 0. That question that is given to you in the question number first, and it's your second question. You have to solve this quadratic equation by using quadratic formula. Okay, we know that the general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the general quadratic equation. On comparing इन दोनों की तुलना करके यानी इन दोनों की तुलना करके, देखो यहाँ भी x square है, यहाँ भी x square है. x square के साथ में यहाँ पे क्या है? a, और यहाँ x के साथ में क्या है? 2. तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2. ऐसे b का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका वैल्यू 1 है. और ऐसे c का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 4. You can find the value of the a, b and c by comparing the given quadratic equation with the general quadratic equation. Okay. Now, firstly, you have to find the value of the d. And d means discriminant. Okay. The value of the d is b square minus my 4ac. What is the value of the b? 1. It means we have to square of 1 minus my 4. What is the value of the a? A value is 2. C. What is the value of the c? Okay. Now you can see here 1 square 1 minus multiplied with minus, that will give plus. 4 to ja 8. 8 4 ja 32. Answer will be 33. And the value of the d is 33. Okay. Now by quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus में root d divided by 2a. Put the value accordingly. Firstly, minus sign is here. Minus sign. What is the value of the b? The value of the b is 1 plus minus. What is the value of the d? That is 33. Divided by 2a. It means we have to multiply a by 2. That answer will be 2 to the 4.
-1 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाय 4। हम जानते हैं पहले बच्चों वैल्यूज कितनी होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं, तो एक बार तो वैल्यूज में क्या ले लेंगे पहले बच्चों, प्लस का साइन, x की एक वैल्यू तो क्या आ गई माइनस का 1 है, -1 प्लस में √33 डिवाइड बाय 4, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस में √33 डिवाइड बाय 4। दैट इज योर आंसर। यही क्या हो गया आपके आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका एक और पार्ट करेंगे हम, इसके बाद कौन सा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ we came on the third part of the question number second and the given quadratic equation in front of you. Now you have to find the solution. You have to solve it by using quadratic formula. First step of the quadratic formula is that we know that general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, you know very well about that. On comparing तुलना करने पर एक जनरली है, हमें ये दे रखी है, तो इन दोनों से वैल्यू कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज निकल सकती हैं प्यारे बच्चों। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x के साथ में b है, x के साथ में जो सारा का सारा है वो b है, इट मींस b का वैल्यू कितना आएगा 4√3 और c का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। ओके नाउ हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज द b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b, 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a, 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द c, 3। स्क्वायर करना है पहले बच्चों, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 16 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 48, माइनस में 4 4 16, 16 into में 3, that is also 48. Answer will be 0. The value of the d is equal to 0. Now we have to apply the quadratic formula. Now quadratic formula is, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है पहले बच्चों वो क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था, x का वैल्यू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस में कितना होता है √d डिवाइड बाय कितना होता है 2a। What is the value of the b, 4√3, sin minus is here, minus 4√3 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2a, a का वैल्यू कितना है 2, 4 टू जा कितना हो गया 8। Tell me one thing, what is the 0 अंडर रूट? आपको पता है 4 का अंडर रूट होता है तो आंसर 2 आता है, 1 का अंडर रूट होता है तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0। तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस में 0 डिवाइड बाय 8। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर किसी कंटेंट में 0 जोड़ देते हैं या 0 को माइनस कर देते हैं, क्या कोई चेंज आएगा उसके अंदर? नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों आंसर कैसे बनेंगे, बिल्कुल सेम। दोनों आंसर सेम कैसे बनेंगे, पहला आंसर क्या आएगा माइनस का 4√3 डिवाइड बाय 8, भाई 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा आंसर भी क्या आएगा 4√3 डिवाइड बाय 8। ये आगे कैंसिल भी हो रहा है पहले बच्चों, क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 8 है। 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 भी आता है 8 भी आता है। ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया माइनस का √3 डिवाइड बाय कितना आ गया 2। यहां से भी कितना आ गया माइनस का √3 और डिवाइड बाय कितना आ गया 2। दैट इज योर आंसर। ओके वन थिंग आई वांट टू टेल यू, एक बात मैं आप दोनों को आपको बताना चाहता हूं दोनों मेथड्स के बारे में। आपके मेथड के बारे में कौन सा मेथड सबसे पहले हमने किया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और दूसरे नंबर पे हमने किया है क्या आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन में ये बात नहीं आती, लेकिन इन दोनों में ये बातें चल रही है। पहले बच्चों जब आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व कर रहे हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ये आपने लिख लिया, इसे जब सोल्व कर रहे हैं आपको पता है उसमें एक जगह स्क्वायर बनता है। मान लो मैं ऐसे कहता हूं स्क्वायर इसका बन रहा है और यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव आंसर आ गया कोई। इसका मतलब क्या है, क्या किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू की भी अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमेशा पॉजिटिव। किसी का वर्ग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में क्या होगा पहले बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट।
सॉल्यूशन डज नॉट। अब ये तो एक बात हो गई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, अगर जो डी है, अगर डी आपका क्या आ जाए नेगेटिव, क्या आ जाए नेगेटिव, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है, माइनस का बी अपॉन प्लस माइनस में टू डी डिवाइड बाय क्या है 2x। यहां ध्यान से देखो, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, मान लो मैं कहता हूं नेगेटिव 7 आ गया, क्या आपको इसका अंडरूट पता है कितना आता है? नेगेटिव नंबर का अंडरूट हम नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी जो गिवन इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई, जो गिवन इक्वेशन क्या कर सके, सेटिस्फाई। आपने इन जो 4 पार्ट आपने किए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आपने 4 पार्ट्स किए हैं, इसमें आपको दोनों मेथड्स के बारे में वहां से पता लग जाएगा। बोला जैसे एक केस ऐसा जरूर आएगा उसके अंदर जिसमें स्केल हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव, यानी उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्केल ऑफ एनी वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, हेंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसके बाद आगे क्वेश्चन में करते हैं। इसके बाद आइए